Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman and we are talking about physical quantities and measurements. Today we will understand how we can measure different lengths using different type of instruments available in the market or in the laboratory. Students, we generally deal with these three types of instruments to measure the lengths. The first one is meter rule, the second one is vernier caliper, and the third one is micrometer screw gauge. Meter rules are used when you have to measure the bigger lengths, normally ranging between a few centimeters to 1 meter, because the maximum length of the meter rule it is 1 meter. So the total length of meter rule is 1 meter. If you have to measure a length greater than 1 meter and maximum of a few meters, then instead of using meter rule, we use another type of instrument called as measuring tape. The length of the measuring tape is up to several meters. So we can use measuring tape if we have to measure a length of a few meters. Vernier caliper and micrometer screw gauges are used to measure small lengths, but in this video we will understand how to use the meter rule and measuring tape to measure the length of a body or an object, just like a rod of iron or maybe aluminium sheet. So meter rule is a scale that is made up of plastic, wood or any other type of material having the total length of 1 meter, which is equals to 100 centimeter, and the least count of the meter rule is 1 millimeter. So what does it mean when we are talking about the least count? It simply means you can accurately measure the length of an object up to 1 millimeter or 0.1 centimeter or 0.001 meter. Students, 1 millimeter or 0.1 centimeter और 0.001 मीटर ये लेंथ्स इक्वल होती हैं। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है किसी स्केल के ऊपर। तो मीटर रूल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो अगर आप सेंटीमीटर्स की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर, और अगर मीटर की बात करें तो 0.001 मीटर वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है जो कि मीटर रूल के ऊपर अवेलेबल है। तो हम इससे छोटी लेंथ जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते मीटर रूल को यूज करके। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम किस तरीके से ये एक मीटर रूल है इसको यूज करके इस एल्यूमिनियम शीट की जो लेंथ है इसको मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व, we have aligned this aluminium sheet with the scale such that its one edge is exactly aligned with the 0 millimeter। और अगर आप सेंटीमीटर्स की बात करें तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स में भी 0 है। तो एल्यूमिनियम की जो एक साइड है, इनिशियल जो साइड है, इसको आपने एग्जैक्टली 0 वाली जो लाइन है इसके साथ इसको अलाइन करना है। और एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि जो स्केल है और जो एल्यूमिनियम है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली प्लेस्ड हों। ये अगर एल्यूमिनियम की शीट स्केल से जितनी दूर होगी उतने एरर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपने एल्यूमिनियम शीट की जो एक साइड है या एल्यूमिनियम शीट के अलावा जिस चीज़ की आपने लेंथ मेजर करनी है उसकी एक साइड को ये जो 0 वाली लाइन है उसके साथ एग्जैक्टली कोशिश करनी है कि उसको आप अलाइन कर सकें इस तरीके से कि एल्यूमिनियम शीट स्केल के बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड हो। अच्छा, इसके बाद देखिएगा यहाँ जो दूसरा एंड है इसको भी आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इस एंड से हमें आइडिया होगा कि जो ये एल्यूमिनियम की शीट है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस वन इज 40, 50, 60
And after this 60, try to observe, if this one is 60, then 61, 62, 63, 64, and then this one is 65. So the aluminium sheet end up at 65 centimeter. The unit is centimeter because this is a meter rule with the 1 meter length, and the uh, length of 1 meter is equals to 100 centimeters. As the length of aluminium sheet is 65 centimeters, so let's write over here 65 centimeter. But if you want to convert this length from the centimeter to meter, then how much meters will it be? यहाँ अगर आप चाहो तो इसको मिलीमीटर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ हमने समझा था कि जो 1 मिलीमीटर है वो बेसिकली जो सेंटीमीटर्स में है वो 0.1 सेंटीमीटर और मीटर्स में 0.001 मीटर के इक्वल होता है। तो चलिए इसी जो कन्वर्जन रूल है उसको समझते हुए इसी 65 सेंटीमीटर को मीटर और मिलीमीटर में चेक करते हैं कि ये लेंथ किसके इक्वल आएंगी। So whenever you want to convert a length from centimeter to meter, you have to divide that number by 100. So this is how you can convert easily 65 सेंटीमीटर, तो 65 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी 0.65 मीटर। मीन्स इस एल्यूमिनियम की जो शीट है इसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर या मीटर में 0.65 मीटर होगी। ओके, अब अगर आप इस 65 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, जब भी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपली जो भी क्वांटिटी गिवन है सेंटीमीटर्स के अंदर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपके पास 65 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो आप 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी क्वांटिटी जो थी 65 सेंटीमीटर लेंथ थी ये कन्वर्ट हो जाएगी मिलीमीटर के अंदर, जो कि 650 मिलीमीटर्स के इक्वल है। सो लेट्स कंक्लूड, ये एल्यूमिनियम की शीट अगर सेंटीमीटर्स की बात करें तो ये 65 सेंटीमीटर्स, मीटर्स में 0.65 मीटर और मिलीमीटर्स के अंदर ये 650 मिलीमीटर्स के इक्वल है। सो इस तरीके से आप किसी भी तरह की आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ आप मेजर करना चाहते हो तो आप मीटर रूल को यूज करके बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मेजरिंग टेप की। मेजरिंग टेप इज आल्सो यूज टू मेजर लेंस, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जिस लेंथ को हम मेजर करते हैं वो छोटी लेंथ्स नहीं होती, जैसा कि मीटर रूल के अंदर हम मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसमें आप कुछ मीटर्स तक की लेंथ को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आपके घर का फ्रंट है, ठीक है, उसके अलावा किसी भी आपके पास कोई लैंड है उसको आप मेजर करना चाहते हो उसकी डायमेंशंस को, तो उसके लिए आप मेजरिंग टेप को यूज़ करते हो। प्रोसीजर इसका सेम होता है जैसा मीटर रूल को इस्तेमाल करने का, सेम तरह से हम मेजर करते हैं और इस वजह से हम इसके मेजरिंग का तरीका जो है उसको स्किप करेंगे। सेम तरीके से आपने ज़ीरो के साथ अलाइन करके ऑब्जेक्ट को और फाइनल एज को जो है वो चेक कर लेना है मीटर मेजरिंग टेप के ऊपर कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी किस डिवीजन पर जाके ख़त्म हो रही है, तो उतनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है। देखने में स्टूडेंट्स मेजरिंग टेप जो है वो इस तरीके की होती है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसको रोल आउट किया गया है। तो इसकी लेंथ क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें हैं, बिगर लेंस हैं, उनके साथ मेजरिंग के लिए ये काम आती है। अच्छा, अगर बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की तो ये इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं, ये एक ख़ास तरह की कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग के अंदर आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन अंदर से इसके जो है वो इस तरीके की एक टेप होती है जिसकी वजह से हम इसका नाम मेजरिंग टेप रखते हैं, जिसके ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं मार्किंग अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इस तरफ जो है वो आप लोग देख सकते हो सेंटीमीटर्स के अंदर वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड पे फिट्स के अंदर होंगी वैल्यूज,
मीन यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंचेस, 4 इंचेस, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर मार्किंग होगी। और जहाँ पे जाके 12 इंचेस कंप्लीट हो रहे होंगे वहाँ पे 1 फीट भी लिखा होगा। तो मीन्स ऊपर फीट, ये देखिए फिट्स के अंदर वैल्यूज़ है और नीचे जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर वैल्यूज़ है। तो ये वाली मेजरिंग टेप को यूज़ करके आप थोड़ी बड़ी लेंस को मेजर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और हम एक वीडियो जो है वो वर्नियर कैलिपर और एक वीडियो जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से डिटेल के अंदर समझ सकें कि किस तरीके से उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके आप किसी चीज़ की जो लेंथ है, जस्ट लाइक द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या कोई छोटी चीज़ है जिसकी थिकनेस आप चेक करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।